So first of all, let's create a database in the backend, for which I am using WAMP. You all can use XAMPP also if your college suggests you all use XAMPP. So go to, so how do you go there? Localhost and PHP myadmin. So this will open up the welcome screen for your database, which will show all databases on the left hand side which you already have. If you want to make a new one, you go to this create database. Okay, so let's make a database for you guys. Okay, so let's call it as batch 2. Okay, your database is batch 2 DB. What is the database name I have given? You can give any name, whatever you comes in your mind. So your database is now over here. Now how many tables do you have in your database currently? The figure in the bracket shows the number of tables you have currently. 0 means you have no tables. So you can create a table either by writing a SQL query if you are good at SQL, or you can directly go and create a table by using the GUI. Okay, so here let me use the UI to create the table. So I make a table name by the name EMP, and I want 4 columns in that EMP table: E number, E name, SAL, and department number. And I say go. And now here it will ask me what are the column names. So what is the first column? E number, E name, salary, and department number. E number of what type? E name of type? Take text or whatever. Take text. Salary of D number of. That's all you need over here. Which is the primary key of among these? Which is the primary key? So key number, right? So you go here toward the index part of it and choose the first primary. Only for the first column. That's all. That's more or less. We are done, and you can click on go. You click on go, you get a table. What happened? So you need to save over. You click on save, and you have a table. This was the query for the table. If you had to write the query, this is what you had to write. Okay, so I'll document this also somewhere. So those who want to do a query wise had to do this. Else you have the luxury of the UI. So you have how many tables now you have in your database? One. What is the table name? EMP. And this has how many columns? 4 columns. Makes sense. Now is there any data in the table right now? No. So you can insert the data from the back end or from the front end. So if I insert it directly over here itself, means back end. And if I make a HTML form, make 3-4 text boxes, enter the data over there and hit save, and that data from the front end comes to the back end. So for that I need what? Database connectivity. So let me insert one record for you in the back end. So go to insert, and let's insert first record 101 Alice. For text, it takes a large text box. Salary 800 and department number 10. There is no primary key, foreign key over here. Okay, so you can enter whatever column department number you want. 102 Ben 900 also 10. Click on go, and these 2 records are added. This is the query for those. Okay, so those who want to do with query, the query is automatically generated. I'll copy this for those who want to do with the query. And now, if you click on your table name over here, you will see 2 records in that table. Yes, no, maybe. Now I want to insert the 3rd record, but that I will do using the front end. Am I audible to you, Juveria? Is the task understood what we are trying to do? Yes, sir. Yeah, so now I will make a front-end HTML file. How many columns do I want? How many text boxes I want in that file? How to make a PHP file? Angular bracket, question mark, PHP, and question mark, angular bracket. So whatever code is there within this is called as a PHP code. Okay, and now, no, this is the PHP code. I want to first make the HTML file, right? First, let's make the HTML file. So what is the HTML file which will accept
to accept these four details. What is the HTML we need? The HTML. Yes, you guys know HTML, right? Pune College. HTML. Then what do we have over here? Head and head clauses. Then body and body clauses. Make sense to y'all? Then in the body tag, you will make a form tag. These are all form attributes, right? चलेगा मैं सेशन में रिकॉर्डिंग का सेशन टेक्स्ट में ठीक है सो फॉर्म हो गया, फॉर्म क्लोज हो गया. अब क्या क्या चाहिए अपने को से बोलो. फर्स्ट थिंग क्या? ई नंबर, फिर ई नेम, ये लेबल्स है ना, फिर सैलरी और डी नंबर. तो उसके बाद जब टेक्स्ट बॉक्स लेंगे तो क्या होता है वो? इनपुट, छोटा लिख दो, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, है क्या नहीं? और नाम क्या है इस टेक्स्ट बॉक्स का? T1, करेक्ट. और जब ये जो ई नेम है शुड बी ऑन द सेम और डिफरेंट लाइन, तो क्या करने का? DR कर देने का. हाँ क्या ना, इससे HTML राइट, ये तो तुमको आता होगा. और फिर चार बार ये पेस्ट कर देंगे और सिर्फ क्या चेंज करेंगे टेक्स्ट बॉक्स का? T2, T3 और T4. और फिर लेंगे क्या? सबमिट कर लेंगे हम लोग. सर्वर को रिक्वेस्ट भेजने के लिए ये सबमिट बटन क्या होती है? तो व्हेन यू क्लिक ऑन द सबमिट बटन, व्हाटएवर डेटा फ्रॉम द क्लाइंट इज सेंट टू द सर्वर. तो आईटी का बटन कॉल है सबमिट, उसका नाम क्या दे देंगे? S1. और उस पर क्या दिखाना है आपको? दिखाना क्या है उसके ऊपर? सेव ना, वो सेव करें ना अपन, तो उसका वैल्यू होता है. क्या बताओ वैल्यू क्या हो गया? कैपिटल में सेव. कोई शक? ठीक है. ओके. जब इस फाइल को मैं सेव करूंगा तो कहाँ सेव करना है इसको? जाके जहाँ आपने वैम्प इंस्टॉल किया, तो मैंने C में इंस्टॉल किया है वैम्प. गो टू द फोल्डर. विच फोल्डर? तो आपका जो प्रोजेक्ट रहेगा वो वैम्प में रहेगा. इसमें रहेगा वैम्प. कौन से फोल्डर में? कितने फोल्डर है वैम्प के अंदर? कौन से फोल्डर में रहेगा आपका प्रोजेक्ट? www. और यहाँ पर आपके प्रोजेक्ट के नाम का फोल्डर रहेगा. तो ग्रोसरी DB नाम का प्रोजेक्ट रहेगा. ठीक है, दिख रहा है? तो अभी अपन क्या कर रहे हैं? या सॉल्विंग अ स्मॉल डेटाबेस डेमो, राइट? So I make a folder by the name database demo and I save this file over there. Okay, so this is my, let's say, index.html. So whenever the application loads, it loads from the index file. ये छोटा ई क्यों आया? ये फॉर्म क्लोज नहीं किया अपन. ठीक है. अब जब बंदा सेव पे क्लिक करेगा तो कोड कहाँ जाएगा? टू द PHP फाइल. तो इसको भी सेव कर देते हैं. तो इसको हम सेव कर देंगे addition.php या add dot, या क्या कर देंगे? add.php. वो रिकॉर्ड जब वो बंदा क्लिक करेगा इस पे सबमिट पे, तो कोड कहाँ जाएगा? तो क्लाइंट साइड पे ये फाइल है. तो ये फाइल जब सेव होंगी तो विच इज़ द फाइल ऑन द सर्वर विच इज गोइंग टू टेक द डेटा एंड सेव इट. तो इसके लिए क्लाइंट और सर्वर का लिंकिंग करने का, तो फॉर्म में आके देने का एक्शन इक्वल्स टू, क्या देने का? तो एक्शन इक्वल टू द PHP फाइल. क्या देने का? अच्छा, बाय डिफॉल्ट गेट रहता है. बाय डिफॉल्ट मेथड क्या रहता है? गेट रहता है. समझ आ रहा है? यस. आई एम गेटिंग जुवेरिया सो फार? Yes, sir. Okay, so we have a add.php. As we click on the save, it will go to which file? And this is my index.html. कोई शक यहाँ तक? अब सारा कोडिंग किसमें करेंगे अपन? तो मेरा जो मेथड है ना, मेथड बाय डिफॉल्ट वो गेट है. बाय डिफॉल्ट क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफॉल्ट? अगर मैं नहीं भी दूँ तो भी वो ले लेगा. क्लास में डिफॉल्ट स्पेसिफायर क्या है? प्राइवेट. मैं नहीं भी दूँ तो वो ले लेगा. तो बाय डिफॉल्ट वो क्या लेगा? गेट. पर मैं तुम्हारा दिखाने के लिए लिख देता हूँ. तो मेथड का नाम क्या ले रहा हूँ मैं? तो
जहाँ फ्रंट एंड पे छोटा गेट है ना, वहाँ बैक एंड में उसके लिए कौनटा है $_ गेट। तो अगर आप गेट करते हो तो आप वहाँ ऊपर करेगा PHP में बड़ा गेट, तो यहाँ पोस्ट करेंगे तो वहाँ करेगा $_ जो भी। तो अभी हम क्या यूज़ करेंगे उधर, और फिर ये उसके इंडेक्स है, वो एक एरे है, ये क्या है, एक एरे है, और फॉर्म के जितने भी नेम्स है, हर नेम उसका एक इंडेक्स है, हर नेम उसका क्या है। तो क्या होगा अपने पास गेट का T1 स्ट्रिंग है ना, T1 एक स्ट्रिंग है। तो अगर मैंने करा जाके PHP में $_get T1, तो मुझे क्या देगा, वो देगा जो मैंने इस टेक्स्ट बॉक्स में डाला है, ठीक है। तो अगर मुझे रीड करना है इस टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू, कैसे करूँगा बोलो, राइट। और PHP में वेरिएबल्स के आगे डॉलर आता है, टाइप नहीं आता, क्या आता है, डॉलर। तो मैंने उसको ले लिया $की नंबर, इसमें ले लिया, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, और सेमीकोलन। जैसे बाकी 3 भी रीड करना है तो कैसे करेंगे, वेरिएबल का नाम ज़रूर नहीं है कॉलम के नाम से मैच हो। कॉलम का नाम क्या था, ई नंबर। व्हाट इज वेरिएबल नेम, नॉट नेसेसरी, आई कैन आल्सो गिव इट एज EMP नंबर, आई कैन गिव एनीथिंग, EMP नेम, फिर EMP सेल, और ये EMP DM, T1 T2 T3 और सही है। तो डेटा मेरा फ्रंट एंड से बैक एंड में आ गया। आपको तसल्ली करना है, आप प्रिंट करके चेक कर सकते हैं, प्रिंट करके इको करके क्या कर सकते हैं आप, इको करके आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें जो सी आउट है ना, सी आउट वो क्या है, इको है। तो क्या इको करना है आपको, $EMPNO, ठीक है, और आप इको कर सकते हैं। तो आपको इको करना है, आप चारों को इको कर सकते हैं, EMP नेम, फिर EMP सेल और EMP DNAM। कोई शक? तो अगर मैं कोड को इतना ही रन करता हूँ तो जो मैं ले रहा हूँ टेक्स्ट बॉक्स पे वो डिस्प्ले होगा सर्वर, है ना। तो टेबल में नहीं जाएगा, तो टेबल में उन्हें सिर्फ क्या करें, ले रहे और डिस्प्ले कर रहे हैं। ये सेव किया फाइल को, ये फाइल सेव किया, सेव बोथ द फाइल्स नाउ। Sir, shouldn't we be writing it in double quotes? No, not necessary. Let's check if it is mandatory to use double quotes, ठीक है। So we'll come here, we'll start the, you started the server, right? Okay, start the server by typing localhost टाइप करके सर्वर स्टार्ट कर देने का। तो it will show you all the folders in the www file. What will it show you? It will show you all the folders in which folder। तो क्या क्या www में क्या क्या है, slip1 new, slip1 new, slip2, slip10 blah blah blah, और उसमें अपना कौन सा है, DB डेमो भी है। तो वो सब दिखेगा आपको इधर, दिख रहा है, दिख रहा है। Now you have to go in which application, DB demo, so it opens the index file directly, इंडेक्स फाइल अपने आप खुल जाती है। अभी अपने को एंटर करना है तो कुछ भी एंटर करेंगे, 10 एलिस सैलरी 9890 डिपार्टमेंट नंबर 10, और सेव करूँगा तो दिख गया क्या मैम, दिख गया, यस नो मे बी। तो अपने मतलब Yes. दिस इज प्रूवन कि डेटा फ्रॉम द फ्रंट एंड हैज कम टू द बैक एंड। नाउ व्हाट विल द बैक एंड डू, स्टोर इन द डेटाबेस, स्टोर इन द, तो 3 लेवल हो गए, कितने हो गए, 3 लेवल सिक्योरिटी हो गया। सो वेयर इज माय पेंट स्क्रीन, पेंट स्क्रीन, आई ऑल एबल टू सी माय पेंट स्क्रीन ऑनलाइन। सो कितने लेवल हो गए सिक्योरिटी के और डेटा पासिंग के। तो पहले फ्रंट एंड से डेटा ले लिया, फिर उसको कहाँ भेज दिया, बैक एंड में,
बैकएंड डेटा ले लिया, दे व्हाट बैकएंड डू, स्टोर इन द डेटाबेस। तो ये 3 अलग अलग लेयर से जाना, तो यहाँ बोलना यूज़र से लिए, करेक्ट। तो वी हैड मेड टेक्स्ट बॉक्सेस। जब यूज़र ने सेव पे क्लिक किया, इस पर क्लिक किया तो डेटा किधर इधर आ गया, यहाँ पर वो वेरिएबल्स में आ गया ना, कौन से वेरिएबल्स में आ गया, $_EMPENO। फिर नाउ व्हाट विल वी डू, तो इफ ही एंटर्ड ओवर हियर 18 एंड विराट, लेट्स से वी हैव ओनली 2 columns, he entered over here 18 and virat, what does e number have and what does e name have, इसमें 18 है, इसमें विराट आएगा, है ना, इतना आ गया। अब अपने को करना क्या है, यहाँ पर एक टेबल है, किस नाम से, EMP नाम से, इसमें 4 कॉलम है जो अपने आते बनाए थे ना, ई नंबर है, ई नेम है और तो वो सब, करेक्ट। सो नाउ वी हैव टेकन 4 things, yes or no, we have 4 text boxes, right, we have 4 variables. Now whatever data is there I will store in this table, 18 virat blah 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 blah. So this step is now what we are going to do. So this part is called as database connectivity. What is this part called as? When the backend communicates with the data, and you can store data as well as you can fetch data. So यहाँ से डेटा क्या जा रहा है, ये इंसर्ट क्वेरी क्या है, अगर मुझे कुछ फेच करना है तो मैं सिलेक्ट क्वेरी करके फेच भी कर सकता, ठीक है। तो डिस्प्ले न्यू ऑल द एम्प्लॉय नेम वर वर्किंग इन डिपार्टमेंट नंबर 10, तो आई फायर अ सिलेक्ट क्वेरी, it will give me data, insert will save data। तो जो रिकॉर्ड हमने इंसर्ट किए थे बैकएंड में ही UI के थ्रू, वो अभी करेंगे ये कनेक्टिविटी के थ्रू। समझ में आ रहा क्या टास्क है। तो यहाँ तक तो अपनी गाड़ी आ गई कि सर डेटा आ गया है बैकएंड में, डेटा बैकएंड में आ गया, ये डिस्प्ले करने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप कमेंट कर सकते हैं जैसे आप करते हैं C में। अब सबसे पहले यहाँ पर ना 3 लेयर ऑफ पेनिट्रेशन है। तो जो फुटबॉल खेलते हैं ना, तो अगर मैच स्टार्ट हुआ है तो पहले आपको डिफेंडर मिडफील्डर को टॉच करना है, टॉच करना है, फिर डिफेंडर को और फिर गोलकीपर को, फिर आप गोल मार सकते हैं। तो जब भी आप डेटाबेस से कम्युनिकेट करेंगे तो पहले तो उस मशीन पे जाना है जहाँ डेटाबेस है, दिख रहा है इधर, तो ये लोकल होस्ट क्या है, उस मशीन पे पेनिट्रेट करना। तो रियल वर्ल्ड में डेटाबेस की अलग मशीन होती है, क्या होती है, जैसे यूट्यूब का जितना भी डेटा है वो किधर है, एक सर्वर पे है ना, तो वो जो सर्वर है उसका एड्रेस है अपने को, IP एड्रेस। एवरी मशीन ऑन द इंटरनेट इज आइडेंटिफाइड बाय अ यूनिक एड्रेस दैट इज कॉल्ड एज द IP एड्रेस। मेरे केस में मेरा डेटा कौन से मशीन पे है, इसी मशीन पे। जब आपका डेटा आपके जब क्लाइंट और सर्वर एक ही मशीन पे होता है तो उसको बोलते हैं लोकल होस्ट। क्या होता है उसको, अगर मैं डेटाबेस इस मशीन पे रखूँ और क्लाइंट इस मशीन पे रखूँ तो फिर क्या होगा, आई नीड द IP एड्रेस ऑफ दिस मशीन, बट नाउ आई एम यूजिंग व्हाट, एक तो लोकल होस्ट। तो मेरा डेटा किधर, लोकल होस्ट पे। अब लोकल होस्ट पे अगर मैं आता हूँ तो मेरे पास 15 डेटाबेसेस है, लेफ्ट में दिखाएंगे आपको, कितने हैं। आपको कौन सा है, तुम्हारा कौन सा है, तुम्हारा बैच 2 DB है ना, बैच 2 DB ना, तो तुम्हारे तो मशीन पे आ गया, मशीन से किसमें आ गया, एंड वन डेटा कैन हैव मल्टीपल टेबल्स, कैन हैव व्हाट, देखो इधर दिख रही है सभी, इसमें 10 टेबल है, इसमें 4 टेबल है, इसमें 4 टेबल है। वन डेटाबेस कैन हैव हाउ मेनी टेबल्स, तो अपना तो फर्स्ट टेबल था तो अपना एक ही टेबल। तो आपको कितने लेवल करना है पेनिट्रेट, कितने लेवल पेनिट्रेट करना है आपको, हेलो, you will connect to the server, then on that once you reach the server then you will go on the, let's say first you will reach Arwa Tower, once you reach Arwa Tower you will reach on which first floor, at first floor which our offices है, then you come to office number 104, ठीक है। तो फर्स्ट हमको कहाँ कनेक्ट करना है,
डेटाबेस कौन से मशीन पे है, तो उसके लिए अपने पास अलग अलग क्वेरीज है। क्या है उसके लिए हमारे पास अलग अलग क्वेरीज है। तो सबसे पहले हमको कनेक्ट करना है, क्या करना है इस पर, तो उसके लिए फंक्शन है MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट। विच इज द डेटाबेस यू आर यूजिंग? MySQL। ये कौन सा डेटाबेस है बोलो भाई? ये MySQL है। क्या ये दिखा इधर? तो आप ओरेकल भी यूज़ कर सकते हैं और पोस्टग्रेस भी यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस यूज़ कर सकते हैं। आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं? तो सारे फंक्शन शुरू किससे होंगे? MySQL से। तो पहले मैं लिखूंगा MySQL। तो डेटाबेस पे कनेक्ट करने के लिए सबसे पहला क्वेरी क्या है? MySQL अंडरस्कोर connect. So which machine is the data on? This machine. So either give the IP address of the machine on which the data is, or if it is on the same machine you can say local host. तो जब मैंने ये इंस्टॉल करते हैं ना MySQL, IP एड्रेस मशीन का यहाँ जाने का CMD पे, ओके, CMD पे जाने का, और यहाँ पर IP config क्या डालने का? IP config। तो आपको देता आपका IP एड्रेस क्या दिख रहा है? ये 192.168.111.0.5 ये आपकी मशीन का क्या है? IP एड्रेस। तो ऐसे आप मशीन का IP एड्रेस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपका सर्वर इसी मशीन पे है तो लोकल होस्ट, और हर डेटाबेस को एक होता है यूज़र। तो अपना यूज़र कौन है? रूट, और उसका पासवर्ड मैंने ब्लैंक रखा है। तो मैं कनेक्टेड टू द डेटाबेस यू हैव टू गिव ऑल दिस। डेटाबेस कौन से मशीन पे है, उसका यूज़र नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, यूज़र नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, ब्लैंक। अगर सक्सेसफुल हो गया तो वो इस वेरिएबल में रिकॉर्ड को स्टोर कर दे, क्या कर देगा, उसको हम बोलेंगे डेटाबेस सिलेक्ट डॉट, क्या बोलते हैं $DB। अगर सक्सेस हो गया तो वैल्यू आ गया $DB में, और सक्सेस नहीं हुआ तो वैल्यू नहीं है, ट्रू और फॉल्स। क्या? तो अगर इफ $DB इक्वल टू ट्रू, मतलब क्या आ गया, मतलब हम एटलीस्ट टावर में तो एंटर कर दिए। और अगर नहीं आया तो सर वो अंदर आने दे रहे नहीं, आज गर्दी है बहुत बाहर, और कोई मिनिस्टर आ रहा है, तो पूरा MG रोड पैक है, पूरा काबुल स्ट्रीट पैक है, तो हमको आउट तक भी आने को नहीं आ रहा है। तो अगर DB ट्रू है मतलब हम बिल्डिंग में तो आ गए। अभी एक देखो स्टूडेंट आएगा मिलने के लिए, मैं इसको अपना एड्रेस टेक्स्ट किया है, शी कॉल्ड मी टू शेयर द एड्रेस, नाउ शी विल कम एंड कॉल मी, सर अरोरा टावर में आ गई, अभी कहाँ हूँ? मैं बोलूँगा फर्स्ट फ्लोर पे, सर फर्स्ट फ्लोर पे आ गई, अभी कहाँ हूँ? 1104 में। तो अगर वो अरोरा टावर भी नहीं आई तो है ना, इफ DB is equal to true means at least you enter the database. So you can say echo database, okay, machine found, machine on which database is running found, right? जिस मशीन पे रन हो रहा है आपको वो तो मिल गई है। अगर डेटाबेस का ये फॉल्स हो जाए कि डेटाबेस ही नहीं, मशीन ही नहीं मिल रही थी, क्या बोलेंगे? मशीन ऑन विच डेटाबेस इज रनिंग, नो, मशीन ही नहीं मिल रही है। तो चलो मशीन तो मिल गई, अभी क्या बचा? अब उस मशीन पे आप आ गए, इस लैपटॉप में आ गए, इसमें एक ही डेटाबेस है। अभी आप लोगों का जाना है उस डेटाबेस में। कौन सा डेटाबेस है अपना? डेटाबेस कौन सा है आपका? अभी आप मशीन में आ गए ना, सिर्फ लोकल होस्ट में आ गए, इसमें इतने डेटाबेसेस है। कौन सा डेटाबेस है? Batch2DB। तो इसको बोलते हैं MySQL अंडरस्कोर सिलेक्ट अंडरस्कोर DB। क्या बोलते हैं इसको? MySQL अंडरस्कोर सिलेक्ट अंडरस्कोर DB। MySQL अंडरस्कोर सिलेक्ट अंडरस्कोर DB। तो MySQL अंडरस्कोर सिलेक्ट अंडरस्कोर DB। Which database are you looking for? Batch2DB. On which machine? On this। पूरा इसमें आ गया ना, पूरा वेरिएबल में आ गया पुराना भी, उसका पूरा रस इसमें आ गया, उसका पूरा रस इस वेरिएबल में आ गया, जो कनेक्शन पूरा उस वेरिएबल में आ गया। तो मैं सर्च कर रहा हूँ इस डेटाबेस को इस मशीन पे, जिसको मैंने इससे लिंक किया है। तो ये मशीन पे ये ID से ये पासवर्ड जो डेटाबेस मिल रहा है, उसका पूरा
जो क्रक्स है उसको डाल दे डॉलर डीबी में। तो अभी डॉलर डीबी में आ गया पूरा MySQL का। अब बोल रहे अपन इस डेटाबेस में मशीन पे कनेक्ट कर किस पे, ठीक है। तो अभी उसको हम बोलेंगे डॉलर कनेक्शन, करेंगे उसको डॉलर कनेक्शन। अब अगर ये भी नहीं हुआ तो सर मैं राउटर पे आ गई पर लिफ्ट बंद है और स्टेयरकेस पे काम चालू है, मैं बिल्डिंग में तो आ गई और ऊपर आपके फ्लोर पे नहीं आ पा रही, तो क्या बोलेंगे अपन अभी इसको, इफ कॉन इज इक्वल टू ट्रू मीन्स मैं उस फ्लोर पर भी आ गई, क्या बोलेंगे डेटाबेस फाउंड। एल्स क्या बोलेंगे डेटाबेस ही नहीं मिल रहा है, मशीन तो मिल गई पर मशीन मिल गई पर डेटाबेस नहीं मिल रहा है। कोई शक, कोई शक। अब डेटाबेस भी मिल गया, अब इंसर्ट इसमें करेंगे EMP के अंदर इस मशीन के इस डेटाबेस के इस टेबल में क्वेरी करेंगे। तो पहले क्वेरी तैयार कर लो। तो क्वेरी क्या है, इंसर्ट क्वेरी क्या होती है बोलो भाई, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम क्या है अपन ने EMP वैल्यूज। तो 101 102 है ना, 103 नॉनसेंस। कहाँ से लेंगे वैल्यू अपन, जो अपने यहाँ से आए ना, तो यहाँ से आए ना ये सब, विल इंसर्ट दिस राइट। तो कैसे करेंगे इंसर्ट वैल्यूज और ये वेरिएबल्स के नाम डाल देंगे उसके अंदर, क्या है बोलो डॉलर EMP नंबर कॉमा EMP नेम क्या है वैर क्या है ना, सिंगल कोट्स में क्या लो डॉलर क्या और फिर डॉलर EMP सैल और डॉलर EMP डीलर। कोई शक, ये मेरी क्वेरी बन गई। अब इस क्वेरी को अपन कर देंगे एग्जीक्यूट, कर देंगे एग्जीक्यूट। तो MySQL क्वेरी, उसके लिए क्या है MySQL अंडरस्कोर क्वेरी, which query are we executing, which query are we executing, the one in the query variable na, on which connection, on which connection, on this $con connection ना, जो अपन ने establish किया ना कनेक्शन। अब क्वेरी कर रहे हैं, ये क्वेरी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, फिर डबल कोट ओपन किया, क्लोज नहीं किया अपन ने, डबल कोट ओपन हुआ था ना इधर, तो क्लोज। और क्या कर दिए क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दिए और वो जाएगा जो भी आपका वेरिएबल डॉलर रिजल्ट में। तो अगर डॉलर रिजल्ट ट्रू है मतलब एग्जीक्यूट हो चुका है, क्वेरी रिजल्ट अगर डॉलर रिजल्ट ही फॉल्स है तो ट्रू देन रिकॉर्ड इंसर्टेड, रिकॉर्ड इफ नॉट देन समझ में आ रहा है ये क्या करेगा रिजल्ट क्या है ये, then what will you say record inserted। okay, so let's save this and let's try to run it and check whether it is taking effect। so I come here, where is my local host, my local host or what, yeah this is my local host, yes right। so I come back to the start, okay, I go to which application, TB demo, enter the data, can I enter 101 again, can I enter 101, ये पूरा प्रोजेक्ट ही है, प्रोजेक्ट में ऐसे ही हम लोग यूज़ करने वाले हैं, ये जितना भी है ना और हर प्रोजेक्ट के फाइल में ये होगा MySQL queries, MySQL connect, MySQL select db। हाँ प्राइमरी किया इसके लिए उसको नहीं कर सकते, तो वो मारेगा 103 करेंगे, इसको ओपन कर देंगे चार्ज ना, और सैलरी कर देंगे 1000, सैलरी कर देंगे नंबर 10। जब मैं सेव पे क्लिक करता हूँ तो ये वो मार रहा है, क्या बोल रहा है
ये बोल रहा है मशीन ऑन विच डेटा वाज रनिंग इज फाउंड, मशीन मिल गई बट ये दूसरा वाला नहीं मिला। लाइन नंबर 34 पे इशू आ रहा है, लाइन नंबर 34 पे इशू आ रहा है। तो देख 34 पे क्या, देख लो भाई 34 पे क्या है। 34 तो ये है ना 34 पे, बट इट इज टेलिंग मशीन फाउंड राइट। तो मशीन फाउंड और ट्विन डेटाबेस ऑफ द फाउंड दोनों फाउंड हो गए। ओके वी डिडंट गिव अ बीआर, वी डिडंट गिव अ बीआर आफ्टर एवरी लाइन शुड हैव गिवन अ बीआर ताकि वो सब में नेक्स्ट लाइन पे आता। तो दोनों चीज़ें मिल गई ना उसको, मिला है उसको। अब इशू किसका आ रहा है, इशू आ रहा है रिजल्ट। किसका इशू आ रहा है इसको, अभी रिजल्ट का इशू आ रहा है। सो वो देख लेते हैं कि इशू क्यों आ रहा है। ओके सो लेट्स चेक दैट नाउ व्हाई इट इज शोइंग yeah, query looks good to me, query looks perfect to me. Okay so let's check it out over here. So it is still line 34 right. So it is telling this MySQL underscore query, which query and which connection, yeah. And now this insert into EMP values, EMP number we have taken, E name, sal and D number, yeah, and we have inserted them over here. So query इसको नहीं मिल रही proper, इसको query का issue आ रहा है। This is a string right, yeah, the string goes चलता है text को, string goes into double quotes, string goes into double quotes, yes, string goes into double quotes, yeah, not a problem, yeah, we have dollar result and we use MySQL query and we are hitting the query and on the connection. What is the error it is showing over here? It is telling expects two parameters. MySQL query expects parameter 2 to be resource. तो ये क्या होता है कभी कभी डॉलर क्वेरी और डॉलर कॉन सही तो है। तो इसका ऑर्डर फ्लिप करो, देखते हैं कि पहले कनेक्शन और फिर क्वेरी, अलग अलग उसमें अलग अलग चीज़ें आ जाती है नए नए एडवांस में। ओके नाउ लेट्स गो बैक, लेट्स रिफ्रेश इट। ओके 10153 कुछ दे दो ना, DBCS का नाम है बाबा ब्लैक शिप और उसका 10 क्या हो रहा है, मशीन फाउंड, ये फाउंड MySQL अंडरस्कोर क्वेरी का जो सेकंड पैरामीटर है वो बोल रहा है कि कभी कभी उधर फंक्शन नहीं आ जाते, बस कभी कभी क्या होता फंक्शन हो जाते हैं अपग्रेड, फंक्शन हो जाते हैं अपग्रेड, वो इशू आ जाता है बस। Still MySQL I expects first parameter. This just happens. So ऐसा कुछ इशू आ जाता है बस, लेटेस्ट जो आता है ना वर्जन में थोड़ा बहुत फंक्शन का हियर एंड देयर चेंजेस। लेट्स चेक इट आउट। स्टिल नॉट, बस
MySQL query expects one parameter to be 934. We are Sir, the data is made was text, right? yeah, text is single quotes. That's why they use single quotes. No? Let's try to remove single quote and check. Huh? We'll check it out. We'll investigate. We'll do a thorough investigation and what all changes we can make. Okay. So now I've removed the I've removed the so that won't help. That single quote will be there. That single quote will be there. You'll have AMP installed right on your machines. You'll have AMP installed on your individual machines, guys. Who has got a laptop? So it is telling in the MySQL query, just pass the query. Don't pass the MySQL query. Don't pass the con. This also is just. Let's try to do this. Okay. And now when I try to run this code, but I will pass the connection here. I'm not convinced 100% that this may work. Okay. So that's the only mistake you are making. We should have only passed the query. And now this data has now inserted in the EMP table over here. Yes, no, maybe. So this is what have we done? Insert. Correct? Now if I want to delete the record of the employee number, so accept the employee number and delete that record. So how will we do? How will we do? If in an online session the meeting gets over, please just connect immediately on the same invite. So now if I want to delete it, then how will we do? So let's say now we'll make one more table, one more file for delete. I'll call it as delete. Okay. So I will say emp delete.php. What is the name I have given to this file? empdel.php. These two will remain the same. Yes, miss, the issue was don't need to pass the connection over here. That was the issue. It got sorted. Okay. We just had to pass the SQL query. We just had to pass the SQL query. So here, no need to pass the connection. Just pass the query. That's all. So now we are doing again over here empdl. Now we are deleting an employee. So what all will we need? Only his employee number will need, correct? So I won't need this. I'll use the same index. I'll use the same index file. I'll just take the first text box. Then what I'll do is this all connected, this all connected. What is the query? Delete from emp where e number equals to correct? Yes or no? And then record delete. What will I say? Record deleted. Yes, no, maybe. Okay. And now we'll redirect our add index to which file? Action to empdel, right? I'm diverting into this PHP file, right? Diverting into which PHP file earlier? Add PHP. So it was coming over here. Now I'm sending it to whom? I've changed the action, correct? So change the action to empdel. So now I don't need these three things, but let's just keep it aside. Don't enter anything into it because you can use the same fun for both. So now let's come here. Go back to the local host. Go to scroll down here. Okay.
enter 101 and click on. What does it do? Machine on which it has found, data is found and record not inserted. Did I change the name? Did I change? सेव नहीं किया मैंने, तो वहीं चला गया। इसको चेंज नहीं करा क्या मैंने? उसको इंडेक्स को चेंज नहीं करा, इंडेक्स को। ये सेव्ड है, ठीक है। एमपीडीएल पे आ गया, हम यहाँ पर आ गए। सेव नहीं किया, अभी सेव किया। लेट्स गो एंड रिफ्रेश इट। सो व्हाटएवर यू हैव टू डू, just refresh, and now you are just pass record. Go here and refresh. 101 will not be there. Making sense to you all? Yes, no, maybe. Now we are planning to do fetch all the details of this table. Now to see the record I have to fall back on the database always, but database is on which machine I don't know, so I will not get the luxury of this in my real world. So in real world I have to make see on the front end only. So I will write a file, I'll make a PHP file which will display me all the, so I'll save it as display employee. I'll make a file called as what? Display employee dot PHP. And now I will route this to which file now? Display. So just make different files and route it with action. So now we are routing to which file? Display emp.php, and this is my file. So these two things are stationary. This will not change. Yes, no, maybe. So this, इसमें मुझे कोई इनपुट की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे कोई इनपुट की ज़रूरत नहीं है ना। तो डेटाबेस कनेक्ट, मशीन कनेक्ट हो गई और डेटाबेस कनेक्ट हो गया। जब मैं गारंटीड हूँ कि मेरा ये कोड काम करेगा ही, तो ये कचरा पट्टी करने की ज़रूरत नहीं है। इतना कचरा पट्टी करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट 2 लाइन पे आ गई। समझ आ रहा है? समझने के लिए क्या चीज़, ठीक है? Sir, I can't see the screen. Yeah, I'll share it. ठीक है? So if you are comfortable with all this, no, so I remove all this if and else कचरा। Okay, so direct 2 लाइन में अपना काम हो जाता। मशीन में कनेक्ट, डेटाबेस में कनेक्ट। तीसरा क्या है? टेबल पे कनेक्ट। तो टेबल के लिए क्वेरी करते हैं। तो क्वेरी क्या है अपनी अभी? बोलो भाई। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। ये मेरी क्वेरी बन गई। ये मेरी क्वेरी को मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, तो मेरा रिजल्ट में आ गया सारा डेटा। अब रिजल्ट मेरा कैसा दिख रहा है? अब मेरा रिजल्ट ऐसा दिख रहा है। अब मेरा रिजल्ट प्रिंट स्क्रीन किया मैंने। अब मेरा रिजल्ट, आर यू एबल टू सी द प्रिंट स्क्रीन मैम? Yes, sir. So if this is my database table, my result is looking like this. This is my result. ये मेरा टेबल है। टेबल से मैंने पूरा फेच किया और क्या मंगा लिया मेरे रिजल्ट में। अब रिजल्ट को मैं कैसे प्रोसेस करूँगा? एक रो ना, एक रो करेंगे ना। तो ये बताओ, ये जो मैं अभी निकाल रहा हूँ, इसको आप प्रोग्रामिंग में कौन से चीज़ में स्टोर करोगे? प्रोग्रामिंग में इसको स्टोर करने के लिए आपके पास क्या है? इंटीजर है, एरे है, क्या है? बोलो भाई। So we will scan this data row by row. We will scan it by how? Row by row. और एक एक को डेटा किसमें लूँगा मैं? इंटीजर में। किसमें लूँगा? एरे में। किसमें लूँगा? तो कितने टाइप के एरे हैं PHP में? PHP में कितने टाइप के एरे हैं भाई? 4. हाँ, 2 टाइप के एरे हैं, एसोसिएटिव एरे और इंडेक्स्ड एरे। कौन से एरे हैं? 2 टाइप के एरे हैं,
अगर आपका जो ट्रेडिशनल एरे है जो सी सी प्लस प्लस से आ रहा है वो इंडेक्स एरे क्या है, तो इंडेक्स एरे के हिसाब से इसका इंडेक्स क्या है 0 और इसका इंडेक्स क्या है 1, इसका इंडेक्स क्या है 2, ये ट्रेडिशनल जो अपना चलते आ रहा है, ठीक है। और एक है एसोसिएटिव एरे भी है, क्या है उसमें क्या होता है इंडेक्स भी आप खुद दे सकते हैं, तो कॉलम का नेम इंडेक्स बन जाता, क्या बन जाता, जो कॉलम का नेम है ना वो इंडेक्स बन जाता, तो वो ऐसा दिखता होता, वो भी एरे ही है और उसमें इंडेक्स क्या बन जाते हैं, कॉलम का नेम इंडेक्स बन जाता उसमें। तो ये इफ आई वांट टू डिस्प्ले 102 व्हाट विल आई से, सो इफ द एरे नेम इज a, so if I want to display the e number in the first choice, तो इस ये यूज करके I want to display 102, तो एरे का नाम a है, एरे का नाम arr है, क्या नाम है एरे का नाम, I will display echo arr of 0, and if I want to display over here then what will I display arr of e number। तो ये कौन सा एरे है, और ये कौन सा एरे है एसोसिएटिव, कौन सा associative। तो which one do you all want, so मैं क्या करूँगा अभी, ये जो हमने फेच कर लिया ना सारा का सारा रिजल्ट में है, अब रिजल्ट का हम लोग एक एक रो निकालेंगे, क्या निकालेंगे, that will be a loop, yes or no, so I'll put a while, तो हम किसको इटरेट कर रहे हैं अभी, इसको इटरेट कर रहे हैं हम लोग अभी, और कहाँ डाल रहे हैं, कौन से एरे में डाल रहे हैं, तो उसके लिए अपने पास दो फंक्शन है, MySQL _ fetch _ array और fetch _ assoc। fetch array किया तो 0 1 0 1 2, fetch assoc किया तो कहाँ से निकाल रहे डेटा, $result से, राइट। और वो जो एरे जिसमें वो आ रहा है उसका नाम क्या दिया अपन ने, समझ में आया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, हमने सिलेक्ट स्टार किया, वो क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दिया, पूरा डेटा किस में आ गया, उस रिजल्ट को मैं एक एक एलिमेंट एक एक रो ले रहा हूँ, फेच कर रहा हूँ किससे, assoc से, और क्या डाल रहा हूँ मैं arr एरे में, सुनो। अब arr एरे को अपने को दिखाना है किसमें, अगर मैं ऐसे ही दिखा दूँ, चलो अगर मैं ऐसे ही दिखा दूँ तो $arr कौन सा इंडेक्स उसका, हाँ ये नंबर 0 नहीं, 0 क्यों नहीं, अगर मेरे को करना होता वो, अगर 0 करना है आपको तो क्या करो, फेच एरे करो, क्या करो, तो क्या करो फिर arr of 0, ठीक है, डॉट मतलब कॉनकैट, डॉट मतलब क्या कॉनकैट, मैं एम्प्टी स्पेस दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ एम्प्टी, ताकि वो नाम में स्पेस है, या मैं एक पाइप देता हूँ, क्या देता हूँ मैं पाइप खड़ा, ताकि वो पाइप का गैप आ जाए, ठीक है। फिर क्या करने का बोलो फटाफट, बोलो ना, डॉट किया किससे, arr of 1 से, वापस डॉट किया, ओके लेट्स डू सेमीकोलन ओवर हियर, लेट्स डू सेमीकोलन, व्हाट विल दिस डिस्प्ले मी, नंबर और नाम, 2 3 से करके बाकी भी डिस्प्ले कर सकते हैं आप, कोई शक, और ये आ गया वाइल लूप में, क्या हो गया ये, एंड में क्या आना चाहिए फिर लास्ट में, डॉट कर दो br, ताकि लास्ट में न्यू लाइन ऐड कर देना, न्यू लाइन, फर्स्ट रिकॉर्ड फिर न्यू लाइन, सेकंड रिकॉर्ड न्यू लाइन, समझ में आ रहा, समझा। अब इसको सेव किया, लेट्स ट्राई टू, तो इसको तो सेव कर दिया, और इंडेक्स है उसको भी सेव, इसको सेव कर, ताकि अपन ने चेंज किया है एक्शन को, वापस गए, आर यू गेटिंग जिवेरे व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, Yes, sir. वेरी गुड, सो प्लीज रेज अ अलार्म इफ यू आर लैगिंग बिहाइंड। सो ये हो गया, यहाँ तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ सेव किया तो आगे 102 बैन और 10 dbs, कोई शक। अब मुझे दिखाना है टेबल में, क्या दिखाना है, तो टेबल टैग कैसे लिखते हैं, जो अनशरा टेबल टैग कैसे लिखते हैं, HTML में, कौन है HTML, टेबल TR TD,
कब हुआ था? which year? फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम, सेकंड ईयर सेकंड सेम, सेकंड ईयर फर्स्ट सेम, 6 महीने पहले हुआ। याद है कि भूल गए? याद नहीं है? तो एच टी, तो टेबल टैग जो है, टेबल टैग एक बार या 4 बार? एक बार। तो लूप के बाहर, लूप के बाहर, तो इसमें जो करना है वो इको करना है, क्या करना है, जो भी करना है वो इको। तो इक्वल टेबल टैग लूप के अंदर के बाहर। एक टेबल को कितने टेबल टैग रहते? हाँ अंशरा, एक टेबल को कितने टेबल टैग रहते? ठीक है। तो टेबल टैग मैंने लिखा लूप के बाहर, उसको दे दो बॉर्डर इक्वल्स टू 1, क्या दे दो? तो मैंने यहाँ पर डबल कोट्स यूज़ किया है ना, यहाँ अंदर सिंगल कोट यूज़ करो, ये कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो टेबल टैग एक होता है, तो शुरू में टेबल को इको किया और आफ्टर द लूप क्या करने का? टेबल क्लोज कर देने का। तो ये एक बार होता है। तो टीआर, हाउ मेनी टाइम टीआर, हाउ मेनी टाइम्स टीआर, जितने रो उतने बार टीआर। तो लूप के अंदर जितने रो उतने टीआर ना, तो लूप के अंदर जितने बार लूप चलेगी उतने बार वो टीआर बनाएगा। यस, टीआर ओपन भी करेगा और टीआर क्लोज भी करेगा। और फिर ये क्या है, हेडिंग कितने बार देगा? हेडिंग एक बार ना, एम्प्लॉय नंबर एम्प्लॉय हेडिंग एक बार। तो वो लूप के अंदर का लूप के बाहर, लूप के बाहर। तो वो भी एक टीआर है ना, वो भी एक टीआर है। तो इको वो भी एक टीआर है। तो वो भी एक टीआर है, राइट। तो इसको भी टीआर कर दिया इको, और इसको भी एक टीआर कर दिया। उसके अंदर क्या आएगा बोलो भाई? टीडी आएगा। तो इको क्या बोलो भाई? टीडी का टीएच, टीएच ना भाई। और क्या है वो? टीएच ई नंबर और स्लैश टीएच, सही है। तो टीआर दे दिया, फिर डी नंबर और ई नंबर, और मैं 2 ही कॉलम लिए ना, ई नंबर और ई नेम, और टीआर क्लोज कर दिया। ठीक है। तो एक रो बन गया टेबल के बाहर। अब बाकी जितने भी टीआर है वो क्या है? टेबल के अंदर है। और वो क्या है? टीडी है ना। तो क्या होगा वो? तो ये इको डबल कोट्स क्या? टीडी। ठीक है। एरे कभी डबल कोट्स के अंदर नहीं आता, एरे कभी भी डबल कोट्स के अंदर, तो डॉट करो क्योंकि वो स्ट्रिंग है ना। तो डॉट, फिर ये डेटा, फिर डॉट किसे करो उसको वापस? टीडी। ये हो गया पहला टीडी। ठीक है। अब दूसरा टीडी भी कर दो। इको क्या? टीडी $AR1, and when you are giving table no need to give BR। ठीक है। एरे कभी भी डबल कोट के अंदर नहीं आएगा, बस ध्यान रखो। और चूंकि स्ट्रिंग से कॉन्कैट करना है, इसके लिए डॉट लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं इसके लिए हम लोग? डॉट लगा रहे हैं। ओके, फर्स्ट सेमीकोलन मिसिंग है तो ओके। और ये जितने बार टीडी करेगा उतने बार टीआर भी कर देगा, फिर टेबल भी क्लोज कर देगा। ठीक है। लेट्स सेव इट, लेट्स चेक इट आउट। So this will require a lot of patience and lot of practice. What we are trying to do is fast programmer. Oh my. Line number 17. What is the problem? 7. No semicolon. What a shame. What a shame. Okay, sorry. बाकी जा दिया ना? आया? बात समझ में आ रही? इंसर्ट भी किया, डिलीट भी किया, सिलेक्ट भी किया, ये काम करते रहने का।
Are you getting Javeria? Yes, sir. Very good. Now what to do? This was Fetch fetch. array. Fetch array. अभी क्या करने का? Fetch assort. क्या करने का अभी? सिंगल कोट्स में ई नंबर और सिंगल कोट्स में सेव किया और कोई शक?